على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اور جہاد بالسیف کرتے ہوئے، جہاد بالنفس کرتے ہوئے، جہاد بالکفار کرتے ہوئے جو لوگ مارے جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ مردہ نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں، مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، منومن قبر کے نیچے بھی اتر جاتے ہیں، ان کو لحد میں بھی اتار دیا جاتا ہے، ان کے کفن دفن جو ہوتا ہے وہ سلسلہ بھی قائم ہوتا ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہیں مردہ۔ بھائی ہم تو اسے مردہ کہتے ہیں، جس کو منومن مٹی کے نیچے اتار دیں ہم انہیں مردہ کہتے ہیں، قبر میں ہم اتار دیں اسے ہم مردہ کہتے ہیں، جس کی میت کو ہم خود کاندھوں پر اٹھا کر کے چلیں اسے ہم مردہ کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مردہ۔ کمال کی بات ہے یار۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، زندگی اور موت کا معیار ہمارے ہاں کچھ الگ ہے اور رب کے ہاں کچھ الگ ہے۔ ہمارے ہاں جو چلتا پھرتا ہے وہ زندہ ہے، جو منومن مٹی کے نیچے چلا جائے وہ مردہ ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، اعداء اللہ سے لڑتے ہوئے اور جہاد بالنفس کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائے اور قبر کے نیچے اتر جائے، منومن مٹی کے نیچے اتر جائے، انہیں مردہ۔ اللہ اکبر، انہیں مردہ نہ کہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ یا اللہ، قبر میں زندہ ہیں، منومن مٹی کے نیچے زندہ ہیں۔ منومن مٹی کے نیچے لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ اگر آپ کہیں جی ولی زندہ ہے، منومن مٹی کے نیچے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ کوئی آکسیجن کا انتظام نہیں ہے اور کوئی ایئر ہوا کا انتظام نہیں ہے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی یہی تو قرآن سے سوال کرتے ہیں ہم کہ منومن مٹی کے نیچے بندہ ہے، آکسیجن کا انتظام نہیں ہے، ایئر اور ہوا کا انتظام نہیں ہے، پھر بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ بولیں زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہمارے جسے ہم زندہ رکھیں، جسے ہم زندگی دیں، اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ایئر اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ اس سے بے نیاز ہے، وہ منومن مٹی کے نیچے بھی زندگی دے سکتا ہے، منومن مٹی کے نیچے بھی وہ حیات دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس جو کتاب جو میں سامنے میں پڑھ رہا ہوں یہ 12ویں صدی ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے، اور اس بندے کا انتقال ہوا ہے 1225 ہجری میں، 1225 ہجری میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں 1272 ہجری میں، 1272 ہجری میں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ نظریہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے
अगर मैं सुना रहा हूं ना, ये नजरिया मैं सुना रहा हूं, लोग बोलेंगे ये बरेलवी है। अहमद रजा ने कहा होगा, ये बरेलवी किसी मौलवी ने लिखा होगा, बरेलवी था ना। मैं वो नजरिया बता रहा हूं जब बरेलवी पैदा ही नहीं हुआ था। मैं वो बात, वो शख्स बता रहा हूं जब बरेलवियत पैदा ही नहीं हुई थी। उस वक़्त जो नजरिया था, आज भी अल्लाह के फजल व करम से हमारा नजरिया वही है। उस वक़्त जो नजरिया था, आज भी अल्लाह के फजल व करम से अहमद रजा का नजरिया वही है। आगे फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला युती लिअरवाहिहिम कुव्वतल अजसाद। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के कुछ लोग ऐसे हैं, मनूमन मट्टी के नीचे चले जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला जो है मनूमन मट्टी के नीचे उनकी जो रूह होती है ना, रूह, उसको वो कुव्वत दे देता है जो दुनिया में उसके वजूद को होती है। सुभान अल्लाह बोले, हक है इसका। सुभान अल्लाह बोले, याद भाई आप भी बोला करेगा, हैं? हक है इसका कि रूह जो है ना, रूह मनूमन मट्टी के नीचे जाने के बाद उसको वही कुव्वत मिलती है जो इस वक्त मेरे वजूद को है, इस वक्त आपके वजूद को है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तआला युती लिअरवाहिहिम कुव्वतल अजसाद। अल्लाह उनके वजूद को, रूह को वो कुव्वत दे देता है, वो हैसियत दे देता है जो हमारी बॉडी को है। अच्छा, हमारी बॉडी पड़ी रहती है, अबे पड़े पड़े तो बंदा बीमार हो जाए, पड़े पड़े तो बंदा बीमार हो जाए। फरमाया नहीं, अगली जुमला बड़ा काबिल गौर है। फरमाते हैं फयज़हबून मिनल अर्दि, वो जो रूहें होती हैं जो कब्र के नीचे वजूद होता है, उनकी जो रूहें होती हैं पूरी ज़मीन में घूमती हैं। हक है, हक है, सुभान अल्लाह, हक है। हाँ हाँ, तो भी जोर से बोला कर मेरे भाई, हैं? हक है कि वो यज़हबून मिनल अर्दि, वो ज़मीन में घूमती हैं। हम ये समझ रहे हैं कि वजूद कहाँ पर है, मनूमन मट्टी के नीचे है। हमने समझा हुआ है कब्र कहाँ पर है, वो महविश शाह कब्रिस्तान में है। कब्र कहाँ पर है, ये वो जो है ना, वो गरीबाबाद यहाँ पर है। लेकिन अल्लाह फरमाता है उसकी रूह पूरी दुनिया में। अच्छा आगे सुनिए, आगे कहते हैं अच्छा मिनल अर्दे वस्समाए, आगे सुनिए, कहते हैं वल जन्नते, वो महज जमीन व आसमान के किनारों में नहीं घूमती, वो जन्नत में भी आती जाती है। वो जन्नत में भी आती जाती है। अल्लाह अकबर। अगली बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, हैसु यशाऊना, फरमाते हैं जब वो चाहते हैं, जिस वक़्त चाहते हैं, जिस ज़माने में जाते हैं, वो ज़मीन की सैर भी करते हैं, ज़मीन और आसमान के किनारों में भी आते जाते हैं, जन्नत में भी आते जाते हैं, जब चाहते हैं ऐसा हो जाता है। अगली बात जो है ना, हमारा तो अकीदा है, कुछ लोगों को हज़म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं वयंसुरूना औलियाअहुम वयुदम्मिरूना अअदाअहुम इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं अल्लाह ने उनकी रूह को वो कुव्वत बख्शी होती है, जैसे अल्लाह ने मेरे वजूद को कुव्वत बख्शी है ना। मेरे ऊपर कोई हमला करे तो मैं अपना दिफा कर सकता हूँ ना, मेरे बॉडी में पावर है ना जी, पावर है ना। तो फरमाया उनकी रूह में वो पावर होती है, उनके ऊपर तो कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन उनके दोस्तों पर कोई दुश्मन हमला करे, उनकी रूहें उनको बचाने के लिए आ जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुर्बान सुन्नत, उनकी रूहें उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। अगला जुमला बड़ा जबरदस्त, वो जो दम्मिरूना अअदाहुम, फरमाया जो उनके दुश्मन होते हैं वो खुफिया प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनकी रूहें आती हैं, उनकी खुफिया प्लानिंग को, उनकी साजिशों को नाकाम व नामुराद बना देती है। इसके बाद काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वमिन अजले ज़ालिकल, फरमाया वमिन अजले ज़ालिकल हयात, फरमाते हैं इसी वजह से अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दे रखी है। अच्छा, ये इस वजूद में जब तक ज़िंदगी है, गलेगा सड़ेगा तो नहीं ना, जलेगा तो नहीं ना, जब तक ज़िंदगी है ना गलेगा ना सड़ेगा। फरमाते हैं अल्लाह ने उनके उस रूहानी
वजूद को जो है वजूद दे रखा होता है। यही वजह है ला ताकुलुल अर्दो अजसादहुम वला अकफानहुम। फरमाया हमने कई मुर्दे देखे हैं, वो मनोमन मिट्टी के नीचे भी उनके कफन तरोताज़ा होते हैं, उनके वजूद तरोताज़ा होते हैं। इसका पता चलता है ये वो अल्लाह के वली हैं जिन्हें अल्लाह कब्र में जिंदगी अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगला जुमला सुनिए, अल्लामा बग़वी अलैहि रहमत, ये भी तफसीर है, अरबी में तफसीर है, पता नहीं लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, ये मेरे समझ में नहीं आता। ये फरमाते हैं इन्ना अरवाहहुम तरकाउ व तस्जुदु कुल्ला लैलतिन तहतल अर्श इला यौमिल क़ियामा। फरमाया जो औलिया अल्लाह होते हैं, नबीयुल्लाह होते हैं, वलीयुल्लाह होते हैं, उनकी रूहें हर रात खुदा की बारगाह में सजदे करती हैं, सुबहान रब्बियल आला कहती हैं, रुकू करती हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, और ये इला यौमिल क़ियामा, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। मेरे भाई, पता नहीं कौन से लोग हैं जो मर जाते हैं, लेकिन हमें ये पता चला है कुछ ऐसे लोग भी हैं कब्रों में होते हैं तब भी बोले 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 तब भी जिंदा होते हैं। मनूमन मिट्टी के नीचे हैं तब भी वो जिंदा होते हैं। मनूमन मिट्टी के नीचे हैं तब भी वो जन्नत में जाते हैं, ज़मीन व आसमान के किनारों पर जाते हैं, अपनों की मदद करते हैं, दुश्मनों का बेड़ा गर्क करते हैं। अल्लाह ताला हमारे दर्स को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।